Everyone, welcome back to my channel. I hope you are preparing pretty well for your CSIR as well as SET examination because you have only some days to prepare for it. So I hope you are preparing so many questions as well as you are pointing out the major key pointers you have to remember. So this is the next part in which I will provide some important ecology questions that are totally important. And you all know that in ecology, so many different questions are asked. So I will provide some new questions directly from the standard reference book. So stay tuned and do watch the video completely to gain insights of ecology. And also, if you like my efforts, hit the like button and subscribe my channel for more such videos. So before starting this video, I would like to request to watch the ecology playlist of my channel. I have already created a ecology playlist in my channel. You can watch this playlist. There are so many important videos in detailed form with questions also. So for studying ecology, you can watch that video. I will provide the link of the playlist in the description box as well as in the I button. So do watch that video to gain insights of different concept of ecology. Now this is the first question of today's video. So the first question is about vampire bats lap the blood of the large mammals from cuts they create, usually on their limbs. Does their interaction with these other species represent? In the question, it is asked that a vampire bats extract out all the blood of the mammals through a cut they made on the limbs. So what does this interaction represent? So interaction किसके बीच का पूछा गया है? Vampire and with the limbs of the mammals. So is it a predator-prey relationship or a symbiotic or a parasitic relationship or a competitive relationship? So here is a key pointer which you have to keep in your mind while solving species interaction question. So is it a symbiotic relationship? No. It's a parasitic relationship in between the vampire bats and the limbs of the mammals. So why it was not a predator-prey relationship? Because जो बैट रहता है दैट इज वेरी अनलाइकली टू किल द होस्ट. वाई? बिकॉज इट ओनली रिमूव्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट्स टिश्यू टू सक द ब्लड बट नॉट किल टोटली इट्स प्रे. यानी प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप इसलिए नहीं हो सकता है बिकॉज जो बैट है वो बस क्या करता है, छोटा सा पोर्शन क्या करता है, इंसिजन लगा के उसका ब्लड सक करता है एंड दे डू नॉट किल द प्रे टोटली. सो इसलिए ये वाला ऑप्शन रॉन्ग था. एंड जो डी ऑप्शन है कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप, सो the two mammals are not regarded as the competing over a resource. दो mammals एक ही जगह पे competing resources के लिए नहीं माने जाते हैं. सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग था. इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या था? पैरासाइट. एंड सो जो बैट का रोल है, बैट का रोल ये है उसमें, इट एक्ट एज अ एक्टोपैरासाइट. Now next question or the second question of today's video. So the question is, individuals confined to a realized niche are likely to experience less competition from other species, more intense selective pressures, fewer resources or fewer predators. So अगर एक इंडिविजुअल अपने रियलाइज नीश में ही रह रहा है, सो वो इनमें से कौन से टाइप का जो प्रेशर है या फिर कौन से टाइप का कॉम्पिटिशन या कौन टाइप का कंडीशन वो इन्फ्लुएंस करेगा. So the first option is less competition from other species. This is wrong because this is not necessarily true because ये less competition हो ऐसा ज़रूरी नहीं है other species से. However, they may experience less competition from other individuals in their species. यानी कि ऐसा होता है कि वो दूसरे species से competition कम हो. This is not true, but true क्या है? ऐसा हो सकता है कि उन species से competition कम हो जिन species का वो part हो. सो मार्क माई वर्ड्स, ये वाला जो ऑप्शन है वो ट्रू नहीं हो सकता. दिस इज रॉन्ग बिकॉज ऐसा ज़रूरी ही नहीं है कि लेस कॉम्पिटिशन होगा दूसरे स्पीशीज से. हाउएवर दे मे एक्सपीरियंस लेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स इन देयर स्पीशीज. यानी सपोज ए स्पीशीज है एंड बी स्पीशीज है, तो ए और बी में कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो ये ज़रूरी नहीं है. सो इसलिए ए पॉइंट गलत है. बट ए के ही अंदर बहुत सारे स्पीशीज होंगे लाइक जैसे A1, A2, A3, तो इनके बीच का कंपटीशन जो है वो कम हो सकता है. इट मे बी, बट ए और बी के बीच में कंपटीशन ना हो ये ज़रूरी नहीं है. इसीलिए ए वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है. सो मोर इंटेंस सिलेक्टिव प्रेशर, यस दिस इज द राइट आंसर. इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी.
जो स्पीशीज रियलाइज नीश में होता है, दे एक्सपीरियंस मोर इंटेंस सिलेक्टिव प्रेशर्स. नाउ fewer resources, option C, this is also incorrect because they do not necessarily experience fewer resources. Indeed, if few other individuals or species live in the habitat, resources may be more abundant. यानी fewer resources वाली कोई कंडीशन वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आए. इनफैक्ट क्या होता है वहाँ पे, अगर उनके ही स्पीशीज़ का कोई और इंडिविजुअल वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हो, सो इट माइट बी पॉसिबल कि वहाँ पे और भी हैबिटाट रिसोर्सेज जो हैं वो अबंडेंट हो जाए, इंक्रीज हो जाए. सो फीवर रिसोर्सेज वाली बात तो आएगी ही नहीं. फीवर प्रेडेटर्स, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एज लाइक एज द ऑप्शन ए, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू कि वो फीवर एक्सपीरियंस करे प्रेडेटर्स को. A predator is not necessarily confined to same ecological range defined by the fundamental niche of its prey. यानी जो प्रेडेटर है वो जो नीश होता है प्रे का, एक कन्फाइंड नीश, वहाँ तक ही वो सीमित रहे, ऐसा नहीं होता है. सो ऑल दीज 3 ऑप्शंस A, C and D आर इनकरेक्ट एंड B करेक्ट है. नाउ वन मोर पॉइंट, आई एम एक्सप्लेनिंग सो मच इन अ क्वेश्चन बिकॉज जितने भी की पॉइंटर्स है इकोलॉजी में किस तरह से पूछे जा सकते हैं यू कांट प्रिडिक्ट. सो इसलिए आई एम ट्राइंग कि जितने भी की पॉइंटर्स हैं किसी भी क्वेश्चन में एक एक पॉइंट बारीकी से मैं बताऊं, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊं, सो दैट उसके एक्सप्लेनेशन से आपको हो सकता है पॉसिबली कोई और क्वेश्चन भी, नया क्वेश्चन जो आ रहा हो CSIR में, वो बन जाए. सो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुनिए और अपने वर्ड्स में यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक इन योर सिंपल ओन वर्ड्स और ओन लैंग्वेज. नाउ क्वेश्चन 3 ऑफ टुडेज वीडियो. क्वेश्चन इज अबाउट द इवोल्यूशनरी स्पीशीज कंसेप्ट. So option A is, it is a functional description of a species recognizing their capacity to change through time. Yes, this is the totally correct option. It means जो ये question है उसका correct option है option A. Evolutionary species concept is a functional description of a species recognizing their capacity to change through time. Option B, C and D are incorrect. Why they are incorrect? So option B is groups together fossils and living specimens. So the evolutionary species concept is not grouping of the fossils together and the living specimen because we rarely have the genetic identities. यानी जो living fossils नहीं हैं, हमारे पास fossils का जो genetic profile है वो ही उतना ज़्यादा available नहीं होता है. We rarely have the genetic identities of the fossil specimen. So ग्रुपिंग्स पॉसिबल नहीं है. सो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाता है. फॉसिल्स यू कैन रिमेंबर कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड रखना इज़ वेरी मच डिफिकल्ट बिकॉज वो बहुत लंबे समय के होते हैं. सो इसलिए ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है. नाउ सी ऑप्शन इज रिलाइज ऑन अ कलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ स्पेसिमेन. सो ये इनकरेक्ट है बिकॉज द मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट यूज फिक्स्ड और टाइप स्पेसिमेन. यानी ये क्या करता है, फिक्स्ड या फिर टाइप स्पेसिमेन को कलेक्ट करता है. मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है. डी है अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई इंसिपेंट न्यू स्पीशीज. सो जो ये ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है बिकॉज इट मे बी इंडिकेटेड बाय अ जेनेटिक एनालिसिस ऑफ अ पॉपुलेशन बट दिस इज नॉट इट्स प्राइम फंक्शन. यानी इवोल्यूशनरी स्पीशीज का ये वाला जो ऑप्शन दिया है वो ही सिर्फ एकमात्र फंक्शन नहीं है. ये क्या करता है, जेनेटिक एनालिसिस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन का बता सकते हैं वेरिएबिलिटी कि एक पॉपुलेशन में कितने अलग अलग टाइप के स्पीशीज़ इनहेबिट कर रहे हैं. सो इवोल्यूशनरी स्पीशीज़ का ये एक बहुत प्राइम फंक्शन नहीं है, इसीलिए ये वाला भी ऑप्शन नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नाउ वन ईजी क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 आई गेस. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन? Inversion, transcription, migration, deletion. So out of the options given in the question, you have to find out that which of the following is not a source of genetic variation. It means through which of the following option genetic variation is not provided. So inversion provides genetic variation and transcription do not provide any genetic variation. So this will be the answer. Migration also provide variation and deletion also provide variation. So the correct option of this question is transcription. Because the inversion is a process which rearranges the genetic code, यानी इसमें genetic code का rearrangement होता है and it allows the different information through the rearrangement. So this will provide the variation, but transcription is a process which
preserves the information in the mRNA but not it provide the genetic variability. And migration also introduce new genetic codes into the population. So this will not be the answer. And through the deletion also rearranges the genetic code and differentiate between the organisms, and therefore it generates different information and it provides the genetic variability. यानी ये option भी नहीं हो सकता. So correct option is transcription. This is an easy question, but it is possible कि ये set के question paper में आ जाए and also in the B section of the CSIR. Now next question, inclusive fitness describes. So the reproductive success of an organism and its relative. Yes, this is the correct option. The inclusive fitness is nothing but the reproductive success of the organism and its relative, and this is through the kin selection. This is known as the kin selection. Okay? So whenever you are studying the kin selection, you have to study the altruistic behavior, altruism, the Hamilton's rule, and all over the concept of the inclusive fitness, because all are interrelated to each other. ये सारे एक ही टॉपिक के सब टॉपिक्स हैं, सो यू हैव टू कवर इट. आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड अ डिटेल वीडियो ऑफ इट, सो यू कैन वॉच इट एंड यू कैन गेन कॉन्सेप्ट ऑफ इट, बिकॉज ये हर बार इकोलॉजी से क्वेश्चन इस पे आता ही है, एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर पे एंड ऑल्सो दी हैमिल्टन्स रूल पे. सो इंक्लूसिव फिटनेस क्या होता है? इट इज़ द रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड टू इट्स क्लोजेस्ट रिलेटिव. सो इसीलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है. द सिलेक्टिव एडवांटेज ऑफ अ ग्रुप सिलेक्शन, नो. द सिलेक्टिव एडवांटेज ऑफ अ असॉर्टेटिव सिलेक्शन, ये भी ऑप्शन नहीं है. द सिलेक्टिव एडवांटेज ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, नो. सो इसमें क्या होता है? एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को क्या करता है? किसी न किसी वे में हेल्प करता है, और इसमें क्या होता है? वो कॉस्ट अपने आप का लॉस करा के उस स्पीशीज की हेल्प करता है. एंड वो किन स्पीशीज की हेल्प करेगा? अगर एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज एन ऑर्गेनिज्म ए, एंड यहाँ पे दूसरे ऑर्गेनिज्म है बी, सी एंड डी. सो एक इनकी हेल्प करेगा, बी की करेगा, सी की करेगा कि डी की करेगा. सो ऑल इट डिपेंड्स ऑन इट्स क्लोजेस्ट रिलेटिव. अगर बी सबसे क्लोज रिलेटिव होगा तो एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर या किन सिलेक्शन के थ्रू किन को बेनिफिट मिलेगा? बी को मिलेगा. और अगर सी रहा क्लोज रिलेटिव तो सी को मिलेगा, एंड देन अगर डी रहा तो डी को मिलेगा. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंक्लूसिव फिटनेस. और फिटनेस बोलने का मतलब क्या है? इंक्लूसिव फिटनेस या एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर तब मिलता है जब जो कॉस्ट ऑफ बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द बी सेक्शन और एल्स इन द सेट एग्जामिनेशन, heterozygote advantage derives from. So the heterozygote advantages derives from the different alleles that are located at the same locus. So this is the correct option and all these three are wrong. So this type of easy question can be definitely asked in the CSIR B section. Now next question, which of the following statement is correct? So you have to find out of the following options given, which statement is correct. So question is on marsupials. यानी हर ऑप्शन में कॉमन क्या दिख रहा है? marsupials दिख रहा है. So firstly let me tell you about the marsupials. So marsupials are a group of mammals, यानी ये एक mammals का ही ग्रुप है जो कि स्टैंड आउट होता है for their unique reproductive methods and diverse adaptation. अब इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? फॉर कंगारूज टू द कोयलाज, मार्सुपियल शोकेस एंड इनक्रेडिबल एरे ऑफ एडेप्टेशंस एंड बिहेवियर दैट मेक देम फैसिनेटिंग सब्जेक्ट्स फॉर द स्टडी. अब ये जो इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिहेवियर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इस वजह से ये क्या होते हैं? एक स्पेशल अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा इन पे रिसर्च होता है, बहुत ज़्यादा इनके बिहेवियर पे स्टडी होता है. सो दीज आर नथिंग बट दी मैमल्स. अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज मार्सुपियल्स इवॉल्व्ड इन गोंडवाना लैंड बिफोर इट स्प्लिट्स फ्रॉम द पैंजिया. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज जो मार्सुपियल्स थे, द फर्स्ट मार्सुपियल फॉसिल्स आर फ्रॉम चाइना. यानी जो फर्स्ट मार्सुपियल फॉसिल जो था वो कहाँ पे आइसोलेट किया गया था? इट इज़ फ्रॉम द चाइना, एंड चाइना इज अ पार्ट ऑफ लॉरेशिया. इट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी वाला, बिकॉज बी में लिखा है मार्सुपियल फर्स्ट डाइवर्ज फ्रॉम द प्लेसेंटल मैमल्स इन लॉरेशिया. अभी मैंने बात किया चाइना का कि ये फॉसिल चाइना में देखा गया था एंड चाइना इज अ पार्ट ऑफ लॉरेशिया.
यानी ए रॉन्ग है, बी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है द मार्सुपियल ग्रुप्स इन द अमेरिकाज आर ओल्डर देन दोज इन द पैलाआर्कटिक। सो ये जो ऑप्शन है दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज द अर्लीस्ट मार्सुपियल फॉसिल्स आर फ्रॉम द पैलाआर्कटिक, यानी ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया बिकॉज यहाँ पे बोला जा रहा है कि अमेरिका के जो मार्सुपियल्स थे दे आर ओल्डर देन दोज इन दी पैलाआर्कटिक। तो ये रॉन्ग है बिकॉज द अर्लीस्ट मार्सुपियल फॉसिल्स आर फ्रॉम ओनली द पैलाआर्कटिक एंड देयरफॉर दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। डी जो है द मार्सुपियल ग्रुप्स इन द अमेरिका आर यंगर देन दोज इन द ऑस्ट्रेलिया। सो दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले फॉसिल्स देखे गए थे एज कम्पेयर टू अमेरिका। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, मार्सुपियल फर्स्ट डाइवर्ज्ड फ्रॉम द प्लेसेंटल मैमल्स इन चाइना दैट इज अ पार्ट ऑफ लॉरेशिया। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो फैक्चुअल्स होते हैं, अगर आपको नहीं पता है सो डोंट अटेम्प्ट इट। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे, सो बी रेडी फॉर इट। अगर नहीं आता है तो स्किप कर दीजिए, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस यू हैव, सो डोंट पॉन्डर अपॉन इट लॉन्गर कि ये नहीं बन रहा है, इसमें क्या होगा, तुक्का मत मारिए क्योंकि ये सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको आता होगा तो ही आप आंसर कर पाएंगे एंड अदरवाइज आप सीधे नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन which can be asked either in the B or C section. So the question is, the seasonality of a temperate ecosystem might allow finer niche differentiation because. So the first option is it maintains primary production throughout the year. This is not true because the primary production is not so maintained throughout the year. So this is the wrong option. Second option is it allows community respiration to dominate community photosynthesis for at least part of the year. This is also wrong because their related activities do not preclude or prevent niche differentiation. यानी ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं इससे niche differentiation का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। And the option C is it sequences event throughout the year and provides for differentiation along a temporal gradient. Yes, this is the correct option. D is it promotes migration and therefore encourages more species to move on and others to arrive. This is also wrong statement. Why this is wrong? Because इसका opposite true है, यानी ये जो statement दिया it promotes migration and therefore encourages more species to move on and others to arrive, इसका just opposite true है, but this statement is wrong. अब ये जो क्वेश्चन है सीजनैलिटी ऑफ अ टेम्परेट इकोसिस्टम माइट अलाउ फाइनर नीश डिफरेंशिएशन, इसका करेक्ट ऑप्शन है द सीक्वेंस इवेंट थ्रू आउट द ईयर विच प्रोवाइड्स द डिफरेंशिएशन अलॉन्ग अ टेम्पोरल ग्रेडियंट, यानी फाइनर नीश के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। सो इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस फ्रॉम इकोलॉजी और यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी अ टॉपिक from which the questions are needed for you. So thank you so much for watching and please hit the like button and subscribe my channel for more such videos.